Yes. The last topic in the asynchronous programming is schedulable programming or scheduled Apex. See, first of all, let's understand what is the need of a scheduled program, and then okay. So let's understand what is the need of schedulable programming, and then we will be seeing like how to schedule a program, how to schedule a class. So let's take this as an assumption. Okay, you have learned about scheduling of a report also. Let me take that example first so that it will create a background in the mind. And then we will be starting with like how classes can be scheduled. I created few of the reports. Let me go with this probably tabular use case number 2. Now see, any report, there's an option that we could even schedule the runs of the report. So with this option, schedule future runs, we will be actually scheduling this report. It could be, the frequency could be like it. We could run it daily or like, weekly or even in the monthly also, or from some starting date to end date. There is one there's one important time that was like exact time of the execution will depend on the job queue activity. Now this sentence, exact start time will depends on the job queue activity. What does this means? Okay. So here even whenever you schedule a report, here even whenever you schedule a report, it will going to create one second. So it will going to create one of the batch job. Whenever you schedule a report, either you could schedule it daily, on a weekdays, on every day, or that weekly, whatever. Whenever you schedule a date, it's going to create a batch job. And we know one thing: every batch job, we know one thing that every batch job they always reside inside a queue. The name of this queue is what? Apex queue, right? From Apex queue, for example, batch J1, job J1, or for example, job J2, something like that. They will be executed, or if the Apex queue is full, they will be obviously going to be get resided into what? Flex queue. They will going to be get resided into the flex queue because the capacity of the Apex queue is only and only 5 jobs, right? And if there are already there are if they, we consider that there are only J1, J2, J3, and J4 and J5. Let's consider that already 5 jobs are residing over there. So obviously, the job what you are creating, this particular scheduling, it will going to create a new job, and that in that case, that job J6 will going to be resided into flex queue. But see, we are not bothered about where exactly the job is going. We don't have any problem if it is goes to Apex queue, or rather if it goes to the flex queue, because what we know one thing is like if even if it is stored inside the flex queue, it's going to be get transferred to what? It's going to be get transferred to the Apex queue. That is something we exactly know, because see, a job, it's going to be always get executed from the Apex queue. I told you when we were learning that concept. Let me try to open that diagram once again. So it was like, mm, batch programming execution, asynchronous operation, or probably it was like flex queue, I think. Yeah, this was. So see, I told you one thing that time, that even the job goes to the flex queue, we don't have any problem in this, and we should not worry about that. Why? Because even though if your job actually is being transferred to the flex queue, that is going to be get transferred to Apex queue for the execution. Every job, if it is goes to the server for the execution, it always goes from where? It always goes from the Apex queue, right? So that is what. So what really happens is like, whenever you schedule something, for example, this was the first time when you learn about the scheduling process. Although you haven't scheduled a class, but what you scheduled was a report. Okay, fine. What I'm actually going to tell you is like, just I'm trying to create something in your mind, that what this process is all about. And then later on we will be studying like how exactly a classes
can be make to be get scheduled, right? That is what. So this was the first time when you heard this word, when you learn this word, scheduling of anything. So, by the way, what does scheduling mean? It actually means periodical run. You don't wanted certain entities to be run at that time. Rather, something we used to call in terms of workflows and process, we used to call this as a scheduled operation or time dependent operation. So, the time dependent operations, whenever you create it inside a workflow, or rather when you create it inside the process builder may, instead of calling this to be a time dependent, we used to call it as a time scheduled operation. So that operation also even going to be get stored, that operation also even going to be get stored inside the queue, but rather that was workflow queue. Okay, that fine. That was not obviously Apex queue, but yeah, that was workflow queue. We have learned this, okay, where from where every time dependent actions, the time dependent actions, whatever you create inside a workflow, that are going to be, that are going to be reside inside a memory called as where it was time-based workflows. This was the memory. So here, all the time-dependent actions they are going to be get resided. Still, this is also a form of memory, and that time also I told you one thing. This is a queue, a form of memory. मतलब there are so many different forms of memory. Queues hai, stack hai, and then the heap is also one of the form of memory. This memory, what they utilize is called as queue memory, and there are certain rules with the queue. The queue follow one rule like first in, first out, or something which is inserted first in a queue, that is going to be executed first, and then going to be get then going to be get exited also first. That's what the thing is all. तो ये थोड़ा सा क्यू के बारे में होता है नो स्टैक मेमोरी इज फर्स्ट इन लास्ट आउट, वो अलग अलग फॉर्म्स का मेमोरी होता है. समबडी हु हैज लर्न डेटा स्ट्रक्चर और कुछ अगर कभी पढ़ने में आया है तो ही नोज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीप एंड देन क्यू एंड देन स्टैक मेमोरी. दैट इज व्हाट, राइट? So here also there is a concept of queue. So everything whatever you schedule always resides in a queue. Now what we are discussing here is exactly is like, what does it means by the apex queue, and where from where places these apex queue and the flex queues are going to be get used. So see, this was the first time when we learned something called as scheduling, and this word exact time, start time. Although if you are if you are scheduling it on the first day of every month, and you wanted it to be get started, you wanted it to be get started at any particular time, but the exact time of the start will depends on the job activities. I mean, how many jobs are there inside the queue? Based on that, a little bit up and downs come into the exact timing, but yeah, though. So ये इससे एक चीज पता चलती है कि this job, if we are scheduling a report, it actually creates a job. It actually creates a job, and that job J1, job J2, whatever, that job will going to be get resided inside the queue. Yesterday what we learned, yesterday we have learned queuable interfaces, and I told you one thing. If you create a class, if you create a class with system.queuable, which implements system.queuable interface, then you need to transfer this class to apex queue. How we are going to do that? System.enqueue job method. That was the method what I have used yesterday. Just yesterday we have learned this. Okay, how we can invoke a queuable class. We need to push it inside the Apex queue. You created a class, for example, you created a class. If this is a class, this class, let's consider this class as a job. Which job? Job JN. How this is going to be get executed? We cannot make it, we cannot directly go transfer this to server. Rather, we need to push it inside the apex queue. How you will push? This is something you stored, how you will going to push it inside the queue? There is a method for that. What is the name of that method? System.enqueue job. What this method always return? It returns what? It returns the id of that particular job. If this is a class, hiring manager queuable interface is a class, and it is trying to push this particular class into apex queue. On and return, it was going to return the job id, and that is why the return type of this method is what? Id. And so we need to declare one variable of the data type id. Primitive id is a primitive data type, right? This is what we have learned yesterday. Here also some similar kind of concept we are learning. Whenever you schedule anything, for example a report, this particular report
this particular report will be treated as a job, and this job will going to be get stored inside the Apex queue, right? This is what the concept of scheduling. Now this was about like scheduling a report. Let's now consider that we have designed a class, a certain kind of business logic. We have designed a certain kind of business logic, and we wanted this business logic to be get executed at a certain instance of time. At a certain instance of time. Now, for example, you wanted something to be get executed on 31st of the March. You wanted a class to be get executed on 31st of the March. So how you can do this? How you can do this? Now we are learning something called as scheduled programming, or called as schedulable Apex. Schedulable Apex. So if we wanted a certain kind of business logic is ultimately your class. Business logic is what? It's a class. The methods, whatever. If you wanted a certain business logic to be get executed at a certain instance of time. For example, I wanted a business logic to be get executed on 31st of March. Then how exactly I can do that? That is what we are now learning. This is also something called as schedulable programming, schedulable Apex. So whenever you wanted this kind of facility inside your class, we need to make the use of an interface. We need to make a use of a decorator. We need to make a use of a ready-made method with the name system.schedulable interface. System.schedulable interface. Now you need to learn these interfaces, obviously. For database, for the batch, it was like, a database.batchable interface. For whenever we wanted a class to become a batch class, what was the name of interface? It was the name database.batchable interface. You just I mean, try it. How you are going to prepare it. It's like it's a little bit easy. It's a little bit easy. You can do it like this. If it's a batch class, what kind of interface? It's the interface name is database dot batchable interface. Database dot batchable, like this. Database dot batchable. What's happening? कमाल है यार, काम ही नहीं कर रहा. Anyway, 1 second. Yes. So how you will learn this? I'm telling you one technique. I'm just telling you one technique. Database dot batchable, I think. Yeah. So if you wanted a class to become a batch class, what kind of interface you will use? Database.batchable interface. Okay? Database.batchable interface along with the S object. S object as the parameter. No, it's not taking that intelligence. Why it's not taking? It's not taking that. Anyways, so this is not related to batch. So it's a queuable interface. What we have learned yesterday. QUEABLE. If it's a queuable interface. If it's a queuable interface, what should we do? Here, it's not database class, rather it's a system class. System.queuable. System.queuable. Okay, that is what. Now what we are learning, schedulable. If you wanted a class to become a schedulable class, if you wanted, what is happening? CHEDU. Schedulable. So if you wanted to form a schedulable class, what kind of interface we should use at that time? We should use this interface. So just, somewhere whenever you create your own notes, so you could write it like this.
Okay, if we wanted a class to become a batch class, if we wanted a class to become a batch class, this is what, if we wanted a class to become a batch class, we should implement what kind of interface? We should implement batchable interface. It's database dot batchable. If I wanted a class to become a, if I wanted a class to become a schedulable or rather queuable, so I should use system.queueable, without any parameter. Database.batchable is always with the S object as a parameter. And if we wanted a class to become a schedulable Apex, we should interface system.queueable interfaces. Okay. Then one more thing what you could add over here is like how exactly we could execute a batch class. तो उसके लिए क्या होता है कि you need to first of all create an instance of the batch class, and then with this method database dot execute batch, database dot execute batch, along with that batch class object that you have created, batch class object name. So we could execute a batch class. We could execute it. This is again you could write. How will you are going to execute your system, your queueable classes? The queueable classes are always executed like this. We need to create an instance of that. We need to create an instance of it, and how we can execute a schedulable class, that's a different story that we are going to learn right now. तो इस तरह से ना आप अपने नोट्स जब बना रहे हो ना, उसमें ये सब चीजें ना कहीं एक जगह पे सारी चीजें जमा करके रख दो, सो दैट आपको ऊपर नीचे ऐसा नोट्स को स्क्रॉल नहीं करना पड़े, राइट? एंड यू हैव एवरीथिंग इन जस्ट 3 lines. कि if we are designing a class and we wanted this to become a batch, this is the interface. This is the interface we should use. Which interface? Database.batchable interface. But then database.batchable interface always demands S object as a parameter. Okay. And how we are going to execute? There's a method for that. There's a method database.execute batch method. Now, if we are designing queueable interface, if you are designing a queueable interface, how we can execute that? First of all, how we can make a class to become queueable? We actually requires to what? System.queueable for that. We need to implement this interface. And for schedulable, we need to that system.schedulable interface. Okay. So there are again step-by-step execution. I can do one thing, let me go with this use case. And then, with this use case, I'll be explaining all these points. That will save my time and your time also. Okay. Moreover, you need to go with the theory once. Okay. So the use case is like we need to schedule a job. We need to schedule a class to purge. Purge मतलब delete करना होता है. So all the positions record whose milestone date is over. ठीक है. And we need to run it every day, morning at 2 a.m. something like this. We need to run it every day, morning at 2 a.m. First of all, understand the use case. Use case समझो, उसके बाद में हम बातें करते हैं. So I'm going to position object. So we have. Now see, let's go to the position object. Let me click on this, all positions. We are here, we have 13 positions. And I'm adding one more column over here, milestone date. Milestone date I'll be adding. Save. Now see, I can see that we have 13 positions with us. And if we talk about their milestone dates, if we talk about their milestone dates, this is 14th of last year. 14th of December, then 27 December, 31. Let me try to make certain changes first of all. Then I'm just making certain changes over here, and then I'll come back to this table once again. Let me make certain changes. I'm actually making the changes in the, so let me make it to be 30th of April. Save it. Milestone date 31st of March. Save it. And then milestone date is like 10th of March. Save it. December. 10th of March, and then save it. And then we have Java tester. Let me make the changes in the milestone date. March. Today is what? 5. Let me make it 8.
save it. And then we have HTML programmer, and the milestone date was like December 27th. Let me make it April 13th. Save it. We have one more position, sales manager. Let me make the changes, and so I'll be making this has to be March, or is okay. Okay, I'm not changing the year that somebody has. Thank you so much for this. Once again, I'll require to change it. Save it. So let me go with over here. I have not changed this. Okay, HTML programmer, Java programmer, whatever. Yes. And Java developer. Make it March 31st, but then it's 2022. Save it. And then we have, this also 22. Okay. And then we have 21 here also. I'll be making this as well 22. Save it. Now let's go back to this and yes. So see, here we have certain different positions, and if I compare it with the milestone date, this is 14th of December. The milestone date has been crossed. Okay, the milestone date has been crossed. Let me verify one more thing. Okay. So the milestone date has been crossed. Okay, and this is also 13th 4, the milestone date. There are so many positions over here whose milestone date has been crossed. Now see, the kind of position whose milestone date has been crossed, we obviously doesn't this record. If I consider Apex programmer, let me open this record whose milestone date was initially 14th of 12th, but last year, 14 December. This record must be either we could close it or this record must be deleted. Now, according to our use case, according to this use case, what we want, we here wanted to delete all of the position records, all of that position records rather whose milestone date is over. This is a kind of filtration process where we don't want, rather we wanted to save our memory in the server, and we simply don't wanted that records to be present over here whose milestone date is being crossed. We wanted to save the memory, and that's the reason we are actually deleting this. We are actually deleting this. We are deleting those position records whose milestone date has been crossed. Okay, and we wanted, this is first thing. See, there are two things in this. The first thing is like you should develop a business logic, you should develop a class in such a way that it will going to evaluate all of the position records. Understand this. I'm actually explaining you this user story, and in detail I'm explaining you. We wanted, there are two things over here. In this use case there are actually two things. The first thing, the first finding what we get from here is like we wanted to create a business logic. We wanted to create a business logic. That means I wanted to create a class, an Apex class. Apex class is a business logic. And I wanted to create a business logic in such a way that the functionality it should going to reflect. It will going to evaluate all of the position records. It will going to evaluate all of the position records. For example, if you have 13 records inside this, so it's going to evaluate all 13 records. And then after evaluation, what's going to evaluate? It will going to evaluate the milestone date. And to every record whose milestone date is over, it will going to delete that record. This is the first thing. This is my first thing. And I don't want this to be executed only once. I wanted this business logic, that this business logic should be repeatedly executed every day morning at 2 a.m. So here I wanted to have the functionality of schedule Apex. मतलब मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे एक बिजनेस लॉजिक डेवलप करना है. ठीक है, सबसे पहले आप यूज केस समझो. I wanted to develop a business logic in such a way that it will evaluate the position records.
and it will going to find out, I mean, it will going to return me all those position records. It will going to return me all those position records whose milestone date is over. And rather not just, it actually not giving me, it will going to delete, it will going to delete, it will going to delete all those position records whose milestone date is over. And then the first thing, and then second thing, मतलब what I am going to do is I am telling you, मैं आपको बताता हूँ. For this I will be creating one batch class. I'll be creating one batch class for this. मतलब my class will be like class number 1, and then for scheduling it I'll be creating class 2. So I will be with the help of class 2, that is a class schedulable class. I will be scheduling this class to run every day morning at 2 a.m. Here I need to implement two different kinds of functionalities. Here I need to implement two different functionalities. The first one is my business logic, and my business logic is present into first class. And I'll be repeating this business logic. I will be actually executing this business logic repeatedly every day morning at what 2 a.m. And you could scheduling ऐसा है कि आपके ऊपर है. इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि हर दिन ही करना है. कब करना है, वीकडेज में करना, वीकेंड में करना, मंथ में करना, वो आपके ऊपर है. So we will be learning two things from this example. First, how to find out this kind of records. First, and the second, how to execute a business logic repeatedly. How to schedule a business logic. How to schedule a business logic. That is second thing. So we will be learning two things from here. We will be learning two things from here. ठीक है, चलो देखते हैं. So let me create a batch class for this. नहीं, उसके पहले मेरे को एक चीज करना पड़ेगा. यहाँ पे एक फॉर्मूला फील्ड बनाना पड़ेगा. ठीक है, चलो. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वन सेकेंड. ठीक है, चलिए. सो मैं क्या करता हूँ, आई विल बी क्रिएटिंग अ फॉर्मूला फील्ड ओवर हियर. मैं एक फॉर्मूला फील्ड बनाता हूँ, और फॉर्मूला फील्ड की मदद से आई एम गोइंग टू गेट ऑल दोज फील्ड्स, ऑल दोज रिकॉर्ड्स रादर हुज माइलस्टोन डेट इज ओवर. यहाँ पर एक मैं फॉर्मूला फील्ड डिजाइन करता हूँ. तो एक नया फील्ड पोजीशन ऑब्जेक्ट के अंदर आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फील्ड. In the position object, I am creating a new field. Understand this. What kind of field? Formula field. So from this list of data types, I am selecting formula. Formula and then next. What kind of formula? You could give any name for this. Let me give the name similar. Position record can delete. With this name, position record can delete. ऐसा position record जिसको हम delete कर सकते हैं. I'm just trying to give the significant name, nothing else. ठीक है? I'm just trying to give the significant name for that. So data type should be checkbox. Data type should be checkbox, boolean value. ठीक है, data type should be checkbox. क्यों checkbox कर रहा हूँ बताता हूँ मैं. data type checkbox रखूंगा. Next. Now let me design that particular field. ठीक है, तो advance, insert the field of the position, milestone date. Function date. Okay. See how I'm designing this. How I'm designing this. तो मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ यहाँ पे कि if for example if today is greater than
milestone date. If today is greater than milestone date, टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं मैं. टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है बताता हूँ. TRU, ट्रू, सेकेंड विल बी फॉल्स. पहले मुझे फॉर्मूला बनाने दो फिर मैं बताता हूँ. If today is greater than milestone date, if it returns true or if it returns false. देखो मैंने एक टुडे फंक्शन होता है. मतलब डेट जैसे बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं तो डिपेंड आपको किसकी ज़रूरत है. तो मुझे डेट एंड टाइम को इवेलुएट करना था तो मैंने डेट एंड टाइम पे जाने के बाद टुडे फंक्शन यूज़ किया. अब टुडे बेसिकली एक फंक्शन है और यहाँ मैं क्या इवेलुएट कर रहा हूँ कि सिस्टम की आज की डेट. सिस्टम की आज की डेट जो यहाँ मेरे सिस्टम का नहीं बताएगा वो सर्वर पे जो आज की डेट है. तो बिकॉज ये यूएस सर्वर से रन होता है तो एक दिन पीछे चलना पड़ेगा आपको. तो अगर आज हमारे यहाँ पे 5th ऑफ मार्च है तो ये उसको कंपेयर करेगा 4th ऑफ मार्च के साथ. तो 4th ऑफ मार्च ये डेट अगर इफ दिस डेट इज ग्रेटर देन माइलस्टोन डेट, ये हो गया इसका कंपैरिजन. मतलब यहां से यहां तक इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं. और टर्नरी ऑपरेटर तुमको लिखवाया तो था आई थिंक, पढ़ाया नहीं मैंने. बट एनीवेज चलो नहीं भी पढ़ाया तो यहाँ से हो जाएगा. तो ये क्या है, ये कंडीशन है. ठीक है, ये है कंडीशन. तो ये बिल्कुल ऐसा है कि इफ टुडे यानी आज की डेट इज ग्रेटर देन माइलस्टोन डेट. अब ये इफ इट इज ट्रू, इफ इट इज ट्रू तो ये ट्रू रिटर्न करता है और अगर फॉल्स है तो फॉल्स. अब ये मैं किसके ऊपर, मैं जो ये फॉर्मूला डिजाइन किया तो मैंने जब डेटा टाइप सिलेक्ट किया तो मैंने डेटा टाइप एक्चुअली सिलेक्ट कर रखा है एक चेक बॉक्स. मैंने यहाँ पे एक चेक बॉक्स किया. तो चेक बॉक्स का मतलब ये होता है कि अगर एक नई फील्ड क्रिएट हो रही है जिसका जो दिखेगी चेक बॉक्स की तरह, जो दिखेगी आपको चेक बॉक्स की तरह, मतलब यहाँ पे उस फील्ड का नाम दिया मैंने. उस फील्ड का नाम दिया रिकॉर्ड. इस फील्ड का नाम दिया मैं रिकॉर्ड कैन बी डिलीट, है ना, यही नाम दिया मैंने, रिकॉर्ड कैन बी डिलीट. ऐसी एक नई फील्ड क्रिएट होगी. ठीक है, और जो रहेगी एक चेक बॉक्स, जो रहेगा एक चेक बॉक्स. अब क्या होगा, ये फॉर्मूला इवेल्युएट होगा. अगर ये फॉर्मूला, अगर आज की डेट इज ग्रेटर देन माइलस्टोन डेट अगर वो मिलती है तो इसका मतलब ये कि आप आज की जो डेट है वो आगे है और माइलस्टोन डेट पीछे है. तो आप उसे ये रिटर्न करेगा ट्रू. तो ये चेकबॉक्स की जो वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी ट्रू. लेकिन अगर मान के चलो कोई ऐसा रिकॉर्ड आया जिसको, जैसे कि वो फॉर एग्जांपल 25th ऑफ अप्रैल है, अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड आता है जो 25th ऑफ अप्रैल है, तो आज की डेट क्या है, आज की डेट है आपकी 4th ऑफ मार्च. 4th ऑफ मार्च इज लेस देन 24 अप्रैल. 4th ऑफ मार्च इज नॉट ग्रेटर देन 25th अप्रैल. तब ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स. तो ये पर्टिकुलर फील्ड हो जाएगी क्रॉस. ठीक है, तो अब इससे क्या मिलने वाला है मेरे को, तो इससे बेसिकली अब बताता हूँ, पहले इसको सेव करने दो. इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं. इधर इट विल गोइंग टू रिटर्न दिस और दिस, इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं. मेक इट विजिबल फॉर एवरी प्रोफाइल यूजर, क्लिक इट नेक्स्ट. लेट इट बी लैंडेड ऑन द डिफॉल्ट पेज लेआउट एंड देन क्लिक नेक्स्ट. हो गया. तो बन गया अपने पास में. लेट्स गो टू द पोजीशन ऑब्जेक्ट. अब मैं यहाँ पर ऑल पोजीशंस में एक और कॉलम ऐड करता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे माइलस्टोन डेट ऐड किया ना, आई एम एडिंग वन मोर कॉलम. ये जो अभी अभी मैंने फील्ड्स बनाई है, रिकॉर्ड कैन बी डिलीट. ठीक है, एंड लेट मी सेव इट. ठीक है, अब देखो क्या नजर आ रहा है तुम्हें. ऐसी कोई भी पोजीशन रिकॉर्ड जिसका माइलस्टोन डेट, जिसका आज की डेट इज ग्रेटर देन माइलस्टोन डेट, मतलब आप इसको डिलीट कर सकते हो, उसके लिए ये चेक है. और जैसे कि ये दिख रहा है आपको, इट्स एक्चुअली 7th ऑफ मार्च. टुडेज डेट इज 4th मार्च. 4th मार्च इज नॉट ग्रेटर देन 7 मार्च. यहाँ पे क्या दे रहा है ये, अनचेक्ड. अनचेक्ड एंड मोर ओवर यू कैन नॉट एडिट इट. ये फॉर्मूला फील्ड है, इसको आप मैनुअली एडिट नहीं कर सकते. यहाँ पे एडिट कर सकते हो. एज सुन एज आई ब्रिंग माई कर्सर ओवर हियर, ये एडिटेबल का सिंबल आ गया, बट यहाँ लाता हूँ तो ये लॉक्ड है. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, एवरी फॉर्मूला फील्ड इज बाय डिफॉल्ट अ रीड ओनली फील्ड. आप इसको अंदर जाके भी चेक कर सकते हो. यहाँ पे देख लो आप, ये फॉर्मूला फील्ड है. एवरी फॉर्मूला फील्ड इज बाय डिफॉल्ट अ रीड ओनली फील्ड है, उसको अपन वो नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते. तो अब क्या हुआ, मैंने एक नया फील्ड क्रिएट किया और मुझे क्लियर कट समझ में आ गया है कि इन सारी पोजीशंस में से कौन कौन सी पोजीशन है जिसका माइलस्टोन डेट क्रॉस हो चुका है. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब एसक्यूएल फायर करूंगा. अब ये आसान हो गया. अब मैं एक एसक्यूएल फायर करूंगा और मैं क्या करूंगा पता है क्या, कि इन सारे रिकॉर्ड्स में से सिर्फ वही रिकॉर्ड पिक करूंगा, सिर्फ वही रिकॉर्ड कैच करूंगा, सिर्फ वही रिकॉर्ड फेच करूंगा जिसका पोजीशन रिकॉर्ड कैन डिलीट नाम की फील्ड की वैल्यू होगी ट्रू. देख लो. तो आपको ये अच्छा. अब आप रियल टाइम पे कोई चेंजेस करते हो तो क्या होता है वो भी देख लो. फॉर एग्जांपल जावा डेवलपर पोजीशन को मैं माइलस्टोन डेट आगे बढ़ा देता हूँ. आई मेक द चेंजेस. ठीक है, यहाँ पे मैं माइलस्टोन डेट जो है इसकी जावा डेवलपर की, इसको मैं चेंज कर देता हूँ.
let me make the changes over here. I'm making it as May की 10 तारीख, ठीक है, May की 10 तारीख, 21 कर दिया, 22 May की 10 तारीख. लेट मी ट्राई टू सेव दिस, जावा डेवलपर, ठीक है. अब आप देख लो, पोजीशन रिकॉर्ड कैन बी डिलीट. ये रियल टाइम है, ये डेटा रियल टाइम है आपका, ये डेटा आपका रियल टाइम है. सी, अब नाउ इफ यू गो बैक एंड यू रिफ्रेश दिस, तो जावा डेवलपर के लिए पहले ये चेक था, अब अनचेक्ड हो गया. तो दिस इज अ रियल टाइम. whenever you make any editing, फॉर्मूला फील्ड जो होता है ना, इट्स आफ्टर इंसर्ट एंड आफ्टर अपडेट. फॉर्मूला फील्ड जो काम करता है वो आफ्टर इंसर्ट आफ्टर अपडेट पे करता है. इधर इफ यू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, जैसे आप न्यू पोजीशन पे जाके के नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो, और यू मेक द चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, तो आपकी फॉर्मूला फील्ड बैकएंड, फॉर्मूला फील्ड वैलिडेशन रूल, दोनों दोनों हमेशा काम करते हैं आफ्टर इंसर्ट आफ्टर अपडेट. ये लिख लो आप, फॉर्मूला फील्ड और वैलिडेशन रूल, बोथ ऑफ देम वर्क आफ्टर इंसर्ट आफ्टर अपडेट. बिफोर इंसर्ट बिफोर अपडेट नहीं करता, वो सिर्फ ट्रिगर करता है, वो सिर्फ ट्रिगर करता है. तो आपके जो वैलिडेशन रूल्स हैं और फॉर्मूला फील्ड्स हैं, दे ऑलवेज वर्क आफ्टर इंसर्ट एंड आफ्टर अपडेट. ठीक है. तो चलो, तो मैंने एक नया फील्ड क्रिएट किया, फॉर्मूला फील्ड क्रिएट किया, जिसका डेटा टाइप कैसा दिखने में कैसा है, चेकबॉक्स जैसा. और यहाँ एक फॉर्मूला लगाया जिसकी मदद से मैंने ये देख लिया कि आज की डेट अगर ग्रेटर है और माइलस्टोन डेट पीछे की है, तो आप उसके लिए चेक कर दो. मतलब इसके ये कि माइलस्टोन डेट क्रॉस हो चुकी है. और अगर आज की डेट स्मॉलर है और माइलस्टोन डेट आगे की है, तो उसको अनचेक करो, मतलब माइलस्टोन डेट आने की है. ठीक है. तो अब मुझे क्या हो गया कि ये सारा रिकॉर्ड अब एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है. तो अब मैं क्या करूंगा, एसओक्यूएल फायर करूंगा, पर्टिकुलरली वेयर क्लॉज के ऊपर में जाके पोजीशन रिकॉर्ड कैन डिलीट की वैल्यू जिस जिस की चेक्ड है, जिस जिस की वैल्यू ट्रू है, वो रिकॉर्ड पिक कर लूंगा और उसको डिलीट कर दूंगा. दैट्स इट, बस इतना ही करना है. तो अभी आसान हो गया. ठीक है, चलो. तो हम चलते हैं, इसके लिए एक बैच क्लास लिखनी है हमको. अब इसके लिए एक बैच क्लास लिखते हैं. सो लेट्स क्रिएट अ बैच क्लास फॉर दिस, और उसके बाद उसको शेड्यूल करेंगे. तो पहले जैसे मैंने बताया कि 2 स्टेप्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा. सबसे पहली स्टेप है, स्टेप नंबर 1, बिजनेस लॉजिक लिखो. एक बिजनेस लॉजिक लिखो. तो वो बिजनेस लॉजिक जो लिख रहा हूं मैं, दैट बिजनेस लॉजिक आई विल बी राइटिंग विद द हेल्प ऑफ अ बैच क्लास. इसके लिए मैं एक बैच क्लास बनाऊंगा. और दूसरा तरीका है, जो सेकंड पार्ट रहेगा, द सेकंड पार्ट इन दिस, हाउ टू शेड्यूल दिस. अब ये बिजनेस लॉजिक को बार बार कैसे एग्जीक्यूट करवाओगे, तो शेड्यूलिंग जो है वो आप इसके सेकंड पे सीखोगे. पहले क्लास तो बना लो, है ना. फर्स्ट लेट्स क्रिएट अ बैच क्लास. तो आई एम क्रिएटिंग अ अपेक्स क्लास. लेट्स गिव द नेम एज व्हाट, delete closed, closed, delete closed, positl, position batch job. ठीक है. with this name I'm creating a batch class. तो ये जो बैच क्लास है, दिस going to delete all those kinds of position जिससे कि माइलस्टोन डेट क्रॉस हो चुकी है. तो कोई भी बैच क्लास, चलिए बैच क्लास कैसे लिखते हैं, कम ऑन टेल मी नाउ. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी हाउ टू राइट इट. ग्लोबल हाँ, चलिए सबसे पहले क्या करूं, ग्लोबल लेट्स मेक दिस एज अ ग्लोबल. GLO BL ग्लोबल. आफ्टर दैट आगे बताइए. यस, implement implements यस, इम्प्लीमेंट नहीं, इम्प्लीमेंट्स. हाँ, व्हाट वी नीड टू इम्प्लीमेंट, as object सिर्फ ऐसा ऑब्जेक्ट, database database dot batchable डेटाबेस डॉट batchable. ठीक है. along with an parameter of s object, ob object. ठीक है, along with the parameter of s object. चलो, ये हो गया. now as soon as you will give this, आपको immediately यहाँ पे एक एरर आएगा. इमीडिएटली एक एरर आएगा कि जब भी आप डेटाबेस डॉट बैचेबल इंटरफेस बनाते हो, इट रिक्वायर्स, देखो, इट रिक्वायर 3 मेथड, स्टार्ट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड एंड फिनिश मेथड. सो आई मस्ट राइट डाउन स्टार्ट. मुझे स्टार्ट मेथड बनानी है, एंड देन आई मस्ट राइट डाउन एग्जीक्यूट मेथड, एंड देन आई मस्ट राइट डाउन फिनिश मेथड. ठीक है. नाउ यू विल गोइंग टू हेल्प मी आउट ऑन दिस. चलो, सबसे पहले रिटर्न टाइप्स पे बात करो. हाँ, सबसे पहले इनके स्कोप पे बात करो. तो क्लास का स्कोप भी ग्लोबल है, इनका स्कोप भी क्या रहेगा, बताइए. global ग्लोबल. ठीक है. द स्कोप ऑफ एग्जीक्यूट मेथड विल आल्सो बी ग्लोबल, एंड देन द स्कोप ऑफ फिनिश मेथड विल आल्सो बी ग्लोबल. ठीक है, ये हो गया ग्लोबल. अब हम रिटर्न टाइप पे डिस्कस करते हैं. फॉर फिनिश मेथड इट इज वॉइड,
For execute method also it is void. हाँ, start method का return type बताइए. Start method का return type बताइए. database dot query database locator. dot Database dot query locator. Query query. locator. Query locator. Database dot query locator. ठीक है. अब हम आते हैं पैरामीटर्स की तरफ. स्टार्ट मेथड का पैरामीटर क्या है बताइए. Database dot batchable. Batchable But frequent. Database dot batchable context. Give any name like b context. ठीक है. Let me copy this everywhere. एग्जीक्यूट मेथड में भी यही रहता है, फिनिश मेथड में भी यही रहता है. बट एग्जीक्यूट मेथड है वन मोर पैरामीटर. व्हाट इज दैट पैरामीटर? यस, व्हाट इज दैट List of पैरामीटर? S object. List of S object. List of S object. Absolutely right. List of S object. List of S object. चलो, ये this completes. अब यहाँ पर आपको एरर आएगा बिकॉज आपने यहाँ पे डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर को रिटर्न टाइप बनाया है, तो इट मस्ट रिटर्न समथिंग. स्टार्ट मेथड मस्ट रिटर्न समथिंग. ठीक है. और यहाँ पे क्यों एरर आया है? list of edge of S object. OB ऐसे OB JECT. Sir, हाँ, what? records रहेंगे ना सर S Sir, object कोई में. नाम हाँ, देना एस पड़ेगा ऑब्जेक्ट का एक एस ऑब्जेक्ट के लिए एक ये देना पड़ेगा हमको. हाँ, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल. एक वेरिएबल नेम देना पड़ेगा हमको. राइट, एग्जैक्टली. ठीक है. सो रिकॉर्ड या रिकॉर्ड टू प्रोसेस व्हाटएवर. हाँ, ये हो गया. चलो, अब लाइक फॉर्मेट्स अपने सारे बन के तैयार हैं. अब बताओ स्टार्ट मेथड का काम क्या है. बताइए स्टार्ट मेथड का काम क्या है? Fetch the data from the database. Fetch the data from the database. मतलब whatever the query you wanted to design, you need to design it inside the start method. तो जो भी query आपको डिजाइन करनी है वो सारी आप कहाँ लिखते हो? स्टार्ट मेथड के अंदर. ठीक है. तो query जो हम लिखते हैं that is always a dynamic query and the dynamic queries are always stored inside a string variable. So string string. Now give the any name for this. For example, POSITN position query. There is a general to make this, see, whenever you declare any variable, there's a confection over here कि we used to give the first name as to be small. but मुझे नहीं पता क्यों, but हाँ, ये एक जनरल मैंने देखा है हर जगह ऐसा. तो ठीक है, चलो ऐसे ही रखते हैं इसको. तो this string queries are always designed inside what? Screen your brackets. ठीक है, not brackets, sorry, single inverted comma. चलो मैं query लिखता हूँ यहाँ पे. so position object के ऊपर मुझे क्या क्या चाहिए? select SELECT, select ID, और आईडी के अलावा क्या चाहिए मुझे? नेम. ठीक है. और उसके अलावा अभी जो मैंने ये फील्ड बनाई, फील्ड का नाम है पोजीशन रिकॉर्ड कैन डिलीट. और यहाँ पे मुझे एपीआई नेम चाहिए उसका. क्वेरी के अंदर हमेशा एपीआई नेम चलते हैं. Let me copy this. ठीक है. सो आई एम जस्ट प्रेसिंग 3 कॉलम्स. उससे ज्यादा वैसे भी कुछ चाहिए नहीं हमको. क्वेरी अननेसेसरी ज्यादा कॉलम्स की बनाओ मत. एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हमने यही बताया आपको कि जितना जरूरी है उतना ही फेच करो, अदरवाइज स्किप करो. तो आईडी चाहिए मुझे, नेम चाहिए, और ये पर्टिकुलरली ये कॉलम का डेटा. ठीक है. बट मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए. हियर एग्जैक्टली आई वांटेड, हाँ, फ्रॉम योर ऑब्जेक्ट नेम इज पोजीशन. तो पोजीशन बिकॉज इट्स अ कस्टम ऑब्जेक्ट, पोजीशन अंडरस्कोर C, from position underscore C, where precisely, let me copy this once again, where precisely the value of this, precisely the value of this equals to true. मुझे सारी फील्ड्स नहीं दीजिए आप, तो सारे रिकॉर्ड्स मत दीजिए. जस्ट गिव मी ऑल दोज रिकॉर्ड्स जिसके लिए पोजीशन रिकॉर्ड कैन डिलीट जो चेक बॉक्स है उसकी वैल्यू है ट्रू. ठीक है. ये हमारी क्वेरी. आई होप यू आर गेटिंग, आई मीन यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द क्वेरी इज. तो क्वेरी ये बना लिया. अब क्वेरी बन के तैयार है तो उसे एग्जीक्यूट करो और रिटर्न यही रिजल्ट करना है हमको. सो इसी के साथ में डेटाबेस डॉट क्वेरी एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं. एक है डेटाबेस डॉट क्वेरी, दूसरा है डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर. गेट क्वेरी लोकेटर अलॉन्ग विद दिस, ये वाला वर्जन, जिसमें हमें क्वेरी का नाम देना है. आई हैव स्टोर्ड दिस इनसाइड दिस वेरिएबल and single semicolon. So this will going to execute this query, or it will return all those position records. It will going to return all those position records जिसका
जिसका ये वैल्यू चेक्ड है, मतलब ना हमको ये वाले रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, ये सारे अपेक्स, HTML, उसके बाद में आपको जावा टेस्टर, ओरेकल एडमिन है ना, ये सब मिल जाएगा, ये पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये वो रिकॉर्ड्स हैं बाय द वे जिसका माइलस्टोन डेट क्रॉस हो चुका है। तो जब आपको ये मिल गया तो फाइनली आपको करना क्या है, उसे डिलीट करना है। बट यहाँ पे स्टार्ट मेथड में सिर्फ हमेशा क्वेरी फायर होती है, यहाँ का जो रिजल्ट कलेक्ट होता है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, रिकॉर्ड्स टू डिलीट, थोड़ा सा सही नाम देंगे तो अच्छा लगेगा। रिकॉर्ड्स टू डिलीट, ये एक लिस्ट कलेक्शन बनाया मैंने, ये जितना भी इसने जितना भी रिकॉर्ड रिटर्न करना है, कितने रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिकॉर्ड। तो दीज 9 रिकॉर्ड्स विल बी रिटर्न, है ना, यहाँ से ये 9 रिकॉर्ड रिटर्न होंगे, दे आर गोइंग टू बी कलेक्टेड इनसाइड दिस कलेक्शन, और यहाँ पर हमको उसको डिलीट करना है, बस और कुछ नहीं। बट तो उसके पहले हम सबसे पहले ये चेक करते हैं एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, इफ द कलेक्शन इज नॉट एम्प्टी, ये आपको मैंने बताया कि एज अ बेस्ट प्रैक्टिस ऑलवेज चेक फॉर दिस, इफ नॉट ऑफ दिस कलेक्शन डॉट इज एम्प्टी, इज एम्प्टी, इफ इट इज नॉट एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है, देयर इज नथिंग टू डिलीट, तो फिर आप रुक जाओ, फिर काय को अननेसेसरी आप अपना DML वेस्ट करते हो। यू हैव ओनली 150 DML, एक ट्रांजेक्शन में 150 DML रहते हैं अपने पास, उससे ज्यादा नहीं, और मुझे अभी एक DML लगाना है यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट करने का, बट इफ देयर इज नथिंग टू डिलीट, व्हाई शुड आई फायर दिस डिलीट DML, है ना। तो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, चाहे वो इंसर्ट अपडेट डिलीट कोई भी DML ऑपरेशन हो, इट्स अ रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिस कि यू शुड ऑलवेज सी कि कलेक्शन में रिकॉर्ड है भी कि नहीं है, एंड दैट्स द रीजन आई एम कलेक्टिंग इफ दिस इज नॉट एम्प्टी। इफ इट इज नॉट एम्प्टी देन आई विल बी डेवलपिंग माय बिजनेस लॉजिक, अभी मैं करता हूँ सो। ठीक है, चलो, तो हमें उसे डिलीट करना है, बट एक चीज यहाँ पर आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन करना पड़ता है, क्योंकि अभी ये जो भले ही ये रिकॉर्ड पोजीशंस के बिलोंग करते हो, लेकिन जब वो उस कलेक्शन में लाए गए तो उसका टाइप बदल गया, नाउ दे रिप्रेजेंट एज एस ऑब्जेक्ट। तो अपने को उसको क्या करना है, एस ऑब्जेक्ट से एक्चुअली उसको कन्वर्ट करवाना है ना, कन्वर्ट करवाना है उसको पोजीशन में। तो टाइप कास्टिंग करनी, टाइप कास्टिंग कैसे करते हो आप, यहाँ पे इसको टाइप कास्ट करना है, इसको टाइप कास्ट करना है, किस में टाइप कास्ट करना है, इसमें करना है। तो यहाँ पे जिसमें करना है उसको आप ब्रैकेट में लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिखोगे कि तो एवरी रिकॉर्ड फ्रॉम हियर इज गोइंग टू बी गेट टाइप कास्टेड, है वो यहाँ पे इसमें आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज और कर सकता हूँ मैं, फॉर लूप लगाने के बजाय, वैसे तो फॉर लूप लगाना था, मैं एक चीज और कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, आई कैन डू वन थिंग ओवर हियर। ठीक है, एक शॉर्टकट अपना रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं, मतलब आई कैन डू वन थिंग ओवर हियर। ठीक है, दिस दिस तो अभी मैंने क्या किया पता है क्या आपको, मतलब एक एक रिकॉर्ड, इसके पहले मैंने आपको एक एक रिकॉर्ड टाइप कास्ट करवाए थे, बट अभी मैंने एक्चुअली क्या किया, ये पूरा का पूरा कलेक्शन, ये खुद एक लिस्ट कलेक्शन है। ठीक है, हालांकि इसका डेटा टाइप एस ऑब्जेक्ट है, रिकॉर्ड्स टू प्रोसेस इसका एस ऑब्जेक्ट है, ये पूरे कलेक्शन को टाइप कास्ट कर दिया मैंने, ये पूरे कलेक्शन को टाइप कास्ट कर दिया मैंने, और इसको लिस्ट ऑफ पोजीशन, मतलब लिस्ट ऑफ पोजीशन जो जिसमें टाइप कास्ट करना था, वैसे इंडिविजुअल रिकॉर्ड करने के बजाय पूरा का पूरा कलेक्शन। तो नाउ व्हाट इट विल रिटर्न, इट विल ऑब्वियसली रिटर्न अ लिस्ट कलेक्शन, इट विल ऑब्वियसली रिटर्न अ लिस्ट कलेक्शन ऑफ दिस टाइप। तो यहाँ पे फिर मैं उसको स्टोर करता हूँ, तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड नहीं रहेगा, वेरिएबल नहीं डिफाइन करना है मेरे को, आई नीड टू डिफाइन दिस। नाउ यू कैन गिव एनी नेम फॉर दिस, POSI पोजीशन रिकॉर्ड पोजीशन टू डिलीट, ठीक है, ऐसा कुछ वेरिएबल नहीं। तो ये, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया कि फॉर लूप ना लगाते हुए थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन किया है कोड को, और मैं देखता हूँ एरर क्यों दे रहा है, अच्छा हट गया। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली क्या किया मैंने, अगर मैं ऐसा नहीं करता, बाय द वे अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ता, एक फॉर लूप लगाना पड़ता है, नान्स फॉर लूप, जहाँ पे एक एंड पे ये रहता, दूसरे एंड पे इसका जो डेटा टाइप है वो ऐसा ऑब्जेक्ट रहता, और एक एक रिकॉर्ड लेके उसको टाइप कास्ट करना पड़ता। तो मैं इसको सिर्फ यहाँ पे पोजीशन सी देता, बट मैंने थोड़ा सा ना ऑप्टिमाइजेशन किया, यहाँ पे फॉर लूप ना लगाते हुए पूरा का पूरा कलेक्शन ही जो है ना, पूरा पूरा कलेक्शन को ही टाइप कास्ट कर दिया, किसमें, लिस्ट ऑफ पोजीशन। तो इट विल ऑब्वियसली गोइंग टू रिटर्न मोर देन वन रिकॉर्ड ऑफ द टाइप ऑफ पोजीशन, तो उसको फिर लिस्ट ऑफ पोजीशंस में कलेक्ट कर लिया और एक नाम दे दिया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए
अब हम ये भी बन के तैयार है, तो नाउ लेट मी डिलीट दिस। अब इसको डिलीट कर लेते हैं। तो हियर यू कुड प्लेन यूज डिलीट, डिलीट भी यूज कर सकते हो, या फिर डेटाबेस डॉट डिलीट चाहे तो वो भी देख सकते हो आप, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। डायरेक्टली आप डिलीट दे सकते हो, किसको डिलीट कर सकते हो, इसको, ये भी चलेगा, दिस विल ऑल्सो वर्क, ये भी चलेगा, ठीक है। ये अगर आप प्लेन डिलीट, प्लेन डीएमएल स्टेटमेंट लेते हो, तो प्लेन डीएमएल स्टेटमेंट के साथ में जो भी इसके ड्रॉबैक्स हैं कि प्लेन डीएमएल स्टेटमेंट्स आर एटॉमिक इन द नेचर, और अगर यहाँ पार्शियल प्रोसेसिंग नहीं मिलती है, और बाय द वे अगर ये जो 9 रिकॉर्ड या फिर 900 रिकॉर्ड है, तो उसमें से अगर एक भी रिकॉर्ड फेल होता है किसी भी वजह से, तो ये पूरा ऑपरेशन जो है हमारा वो स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस एज अ बेस्ट प्रैक्टिस एक नॉर्मल डीएमएल स्टेटमेंट कभी भी रेकमेंडेड नहीं रहती है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिलीट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिलीट हमें क्या यूज करना चाहिए पता है क्या? डेटाबेस। स्पेशली जब आप असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पे हो, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एग्जीक्यूट होती है, तो वहाँ मे बी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आपका एग्जीक्यूशन अल्टर हो सकता है। तो अब अगर आप सिर्फ डिलीट स्टेटमेंट देते हो तो वो एटॉमिक नेचर में, अगर एक भी रिकॉर्ड फेल हुआ तो पूरा का पूरा बैच क्लास फेल हो जाएगा। वी डोंट वांटेड दैट टू बी गेट हैपन, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग डिलीट मैं क्या यूज कर रहा हूँ, डेटाबेस डॉट डिलीट, ठीक है। डेटाबेस डॉट डिलीट में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और जिसमें मुझे चाहिए पार्शियल प्रोसेसिंग, डेटाबेस डॉट डिलीट, तो ये वाला फ्लेवर यूज कर रहा हूँ उसमें, डेटाबेस डॉट डिलीट, ठीक है। किसको डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है, तो आई विल बी यूजिंग दिस, ये वाला जो हमारा कलेक्शन है, इस कलेक्शन को डिलीट करना है, ये कलेक्शन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, एंड आई एम मेकिंग सेकंड पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर मुझे बताओ, पार्शियल प्रोसेसिंग के लिए सेकंड पैरामीटर ट्रू रखना कि फॉल्स रखना? पार्शियल प्रोसेसिंग के लिए सेकंड पैरामीटर ट्रू रखना कि फॉल्स रखना? ट्रू। True. फॉल्स। ट्रू, सेकंड पैरामीटर शुड बी फॉल्स। ट्रू रखोगे आप तो वापस एटॉमिक इन नेचर हो जाएगा, ट्रांजैक्शन मेंटेन करेगा, ठीक है। सेकंड पैरामीटर मस्ट बी फॉल्स, भूल गए? चलो कोई बात नहीं, याद कर लेना। चलो, एंड इट विल गोइंग टू गिव द रिजल्ट। इसका जो रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप मैं बताना भूल गया आप लोग को, अगेन लेट मी टाइप दिस, डेटाबेस डॉट डिलीट। तो इसका जो रिटर्न टाइप है ये देखो आप, इसका रिटर्न टाइप होता है हमेशा डेटाबेस डॉट डिलीट रिजल्ट, डेटाबेस डॉट डिलीट रिजल्ट, ठीक है। ये इसका रिटर्न टाइप है। क्या हो गया? डेटाबेस डॉट डिलीट रिजल्ट, ठीक है। एंड बिकॉज वन मोर देन वन रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी गेट डिलीटेड, तो ये या तो अरे देगा या लिस्ट कलेक्शन में अरे ही बना देता हूँ इसका, अरे ऑफ फॉर एग्जांपल रिजल्ट्स, ऐसा कुछ तो हो गया, बस इतना ही था। ये वाइट स्पेसेस हटा देता हूँ, वाइट स्पेसेस काउंट होती नहीं है लेकिन फिर भी हटा दो, दिखने में अच्छा नहीं लगता प्रोग्राम ज्यादा की स्पेसेस के साथ, ठीक है। दिखने में प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता आपका। बाकी फिनिश मेथड में ऐसा कुछ है नहीं अपने पास में, तो फिनिश मेथड को ब्लैंक ही रख देते हैं। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ फिर से एक बार प्रोग्राम को। वेरिएबल कंटेक्स्ट, id नेम पोजीशन रिकॉर्ड, where पोजीशन रिकॉर्ड कैन डिलीट इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर के साथ इसे एग्जीक्यूट किया, इसने रिकॉर्ड्स रिटर्न किया, यहाँ पे कलेक्ट किया, रिकॉर्ड टू प्रोसेस, रिकॉर्ड टू डिलीट में, एंड रिकॉर्ड टू डिलीट इज नॉट एम्प्टी चेक किया, उसके बाद में टाइप कास्टिंग किया, टाइप कास्टिंग पूरा किया, टाइप कास्टिंग पूरा कलेक्शन का करके कलेक्शन में लाया, उसको डेटाबेस डॉट डिलीट के साथ में डिलीट कर दिया। सेकंड पैरामीटर फॉल्स मतलब आपका ट्रांजैक्शन मेंटेन नहीं करेगा, पार्शियल प्रोसेसिंग देगा, और फिनिश को ब्लैंक रखा है, ठीक है। ठीक है, तो देखो हमारी क्लास जो है ना वो बन के तैयार है, ठीक है। क्लास हमारी बन के तैयार है। अब ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। चलो, जो स्टेप नंबर 1 था कि बिजनेस लॉजिक बनाइए, बिजनेस लॉजिक बनाओ जो ऐसे रिकॉर्ड्स को पकड़े जिसका कि माइलस्टोन डेट जा चुका है, एंड देन यू कैन डिलीट दैट, है ना, आप उसको डिलीट कर पाओ, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ में। अब मेरे को एक और क्लास बनानी है जो कि रहेगा स्केड्यूलेबल क्लास, सेकेंड स्केड्यूलेबल इंटरफेस, ठीक है। चलिए एक क्लास और बनाता हूं इसके लिए। ये पहला क्लास है मेरा, लेट मी क्रिएट वन मोर क्लास, अपेक्स क्लास, और इसका नाम देता हूं, एक मिनट, पहले का नाम क्या है, डिलीट
इसका बैच जॉब है, उसका नाम स्केड्यूलेबल जॉब कर देता हूँ ताकि रिलेशनशिप समझ में आए। ये बैच जॉब है, इसको नाम देता हूँ SCHEDU स्केड्यूलेबल, स्केड्यूलेबल SCHEDULE स्केड्यूलेबल। ठीक है, स्पेलिंग शायद गलत है, मुझे ठीक से पता नहीं, प्रॉबेबली। आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस सिमिलर कि हाँ देखो ये उसकी बैच क्लास है और ये उसका स्केड्यूलेबल क्लास है, बस और कुछ नहीं। चलो अब एक क्लास को स्केड्यूलेबल क्लास बनाने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे ग्लोबल बनाओ। ठीक है, उसे आप ग्लोबल बनाओ। ग्लोबल बनाने के बाद उसमें एक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, एक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करो। क्या इंप्लीमेंट करना है? वी वांटेड टू इंप्लीमेंट सिस्टम डॉट स्केड्यूलेबल, सिस्टम डॉट स्केड्यूलेबल, तो सिस्टम डॉट SCH स्केड्यूलेबल। ठीक है, विदाउट एनी पैरामीटर, विदाउट एनी पैरामीटर। नाउ एज सून एज यू मेक इट, यहाँ पर एरर आता है, इसका मतलब मेथड्स चाहिए। कौन सी मेथड चाहिए? देयर इज ओनली वन मेथड, एग्जीक्यूट। ठीक है, जैसे आपका क्यूएबल इंटरफेस होता है ना, वैसे ये भी इंटरफेस है, इसमें भी सिर्फ एक ही मेथड होती है और वो मेथड होती है आपकी एग्जीक्यूट मेथड। एग्जीक्यूट मेथड ग्लोबल हमेशा होती है वॉइड, चाहे आप क्यूएबल में जाओ, चाहे बैच प्रोग्रामिंग पे जाओ, चाहे शेड्यूल प्रोग्रामिंग पे जाओ, हर जगह जो आपकी मेथड है एग्जीक्यूट मेथड, दिस मेथड इज व्हाट? दिस मेथड इज अ वॉइड, इट्स अ प्रोसीजर। अब आते हैं इसके अंदर के पैरामीटर। तो बैच प्रोग्रामिंग में इसके अंदर का पैरामीटर होता है डेटाबेस डॉट बैचेबल इंटरफेस। क्यूएबल में होता है सिस्टम डॉट क्यूएबल इंटरफेस। ठीक है, यहां होता है सिस्टम डॉट स्केड्यूलेबल, SCH स्केड्यूलेबल कंटेक्स्ट। ठीक है, बिल्कुल वही चीज है। और गिव एनी नेम, फॉर एग्जांपल वहां B कंटेक्स्ट लिखता हूं, इसलिए यहाँ पे S कंटेक्स्ट, S कंटेक्स्ट, और कुछ नहीं। ठीक है, बस ये एक पैरामीटर होता है और कुछ नहीं। 1 सेकेंड। हाँ चलो नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे क्या करना है? वी नीड टू राइट द कोड टू इन्वोक, इन्वोक या फिर इन्वोक करने का मतलब कॉल करना, कॉल योर बैच, कॉल द बैच क्लास, बैच BATCH बैच क्लास। ठीक है, जो कि आपने बनाया है। तो ये नीड टू कॉल, वी नीड टू कॉल और इन्वोक द बैच क्लास। ये वाली जो बैच क्लास बनाया ना मैंने, इसको यहाँ पे हम कॉल करवाएंगे, इसको यहाँ पे कॉल करवाएंगे। ठीक है, चलिए कैसे कॉल करते हैं आइए देखते हैं। तो ये जो आपकी क्लास है, इसको मैंने कॉपी किया इसके नेम को, और इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल डिलीट बैच BATCH इक्वल्स टू न्यू कंट्रोल V एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये जो बैच क्लास है, ये जो बैच क्लास है, ये जो बैच क्लास है, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। क्लास के अंदर दूसरी क्लास, क्लास के अंदर दूसरी क्लास, इस क्लास के अंदर दूसरी क्लास। ये कौन सी क्लास है? ये स्केड्यूलेबल क्लास है। इसके अंदर क्या कॉल कर रहा हूँ? बैच क्लास। कौन सी बैच क्लास? ये वाली बैच क्लास। किस लिए? ये जो बैच क्लास है ये क्या कर रही है? ये वो रिकॉर्ड को डिलीट कर देगी पोजीशन वाले की। और ये मुझे एक ही बार नहीं करना है, अगर मुझे जस्ट एक बार करना होता ना तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया होता था यहीं पर, लेकिन मुझे इसे बार बार एग्जीक्यूट करना है। बार बार करना है मतलब स्केड्यूल करना है। कौन सी क्लास को स्केड्यूल करना है? ये वाली क्लास को। तो उसे कॉल कर रहा हूँ, कहाँ कॉल कर रहा हूँ? एक स्केड्यूलेबल क्लास के अंदर, एक स्केड्यूलेबल क्लास के अंदर। तो जिस क्लास को कॉल करना है उसका इंस्टेंस क्रिएट किया मैंने, ये उसका इंस्टेंस है। क्या नाम है इंस्टेंस का? डी बैच। क्या नाम है इंस्टेंस का? डी बैच। अब आप यहाँ पे उसे एग्जीक्यूट करो। ठीक है, सो डेटाबेस BASE डॉट एग्जीक्यूट बैच, डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच। किसे एग्जीक्यूट करना है? डी बैच। ये वही आप बैच क्लास एग्जीक्यूट कर रहे हो, डी बैच, इसे एग्जीक्यूट करना है। और गिव द बैच साइज 2 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड्स पर बैच। ठीक है, मिनिमम इट इज 1, मैक्सिमम 2000। if you give it, you need to give it like this. if you don't give it, अगर आप ऐसा देते हो, है ना, if you give it like this, अगर ऐसा देते हो, ये वाला फ्लेवर भी है,
यस। सो अगर आप इस तरह से देते हो ना, इफ यू एग्जीक्यूट लाइक दिस, तो व्हाट इज द डिफॉल्ट बैच साइज? व्हाट इज द डिफॉल्ट बैच साइज? बिकॉज मैंने बैच साइज मेंशन नहीं करा है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होता है बताइए? व्हाट इज द डिफॉल्ट बैच 200. साइज? 200. यस, इट इज 200, है ना, बिल्कुल सही। चलो, तो आई विल बी गिविंग द बैच साइज लाइक 2 बैच, टू रिकॉर्ड पर बैच, ऐसा। तो ये मैंने बना लिया स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 2। नाउ लेट मी सेव इट, लेट मी सेव इट। तो देखिए, स्टेप नंबर 1 होता है एक क्लास बनाना, एक बैच क्लास। स्टेप नंबर 2 होता है उसे स्केड्यूल करना। ठीक है, स्टेप नंबर 2 होता है उसे स्केड्यूल करना। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 जो होता है, इसके लिए आपको सेल्सफोर्स में चलना पड़ेगा। यू नीड टू गो विद द सेल्सफोर्स। आप सेल्सफोर्स में चलिए। ठीक है, इसको अलग से एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता, इसको सेल्सफोर्स से एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। तो अब मैं क्या है, ये जो मेरी क्लास है, ये मेरी क्लास, इसको मैं स्केड्यूलिंग करवा रहा हूँ। ये एक स्केड्यूलेबल क्लास है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम डॉट स्केड्यूलेबल इंटरफेस को कॉल करती है। दूसरा, ये इस पर्टिकुलर बैच क्लास को कॉल करने वाली, इसके अंदर ये पैरामीटर है। तो ये मेरा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 मेरा होता है कि मैं सबसे पहले तो एक बैच क्लास बनाऊं जहां मेरा होल बिजनेस लॉजिक रहे, बिजनेस लॉजिक रहे। स्टेप नंबर 2 होता है कि आप स्केड्यूलेबल क्लास बनाओ। तीसरा, तीसरा, अब आप सेल्सफोर्स में चलिए और सेल्सफोर्स में आपको उसे स्केड्यूलिंग करवानी है। ठीक है, लेट्स गो टू द सेल्सफोर्स। तो सेटअप, और सेटअप में जाने के बाद में चलिए आप बिल्ड मेनू में, बिल्ड मेनू में जाने के बाद डेवलप में चलिए। डेवलप में जाने के बाद अपेक्स क्लास पे, एंड इट हैज बीन रिटन, डोंट वरी, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। बट ये लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 फॉर्मूला फील्ड थी इसमें, चलिए वो उस हिसाब से, ठीक है, वो फॉर्मूला फील्ड थी, मानते हैं। स्टेप नंबर 2 जो आपने बैच क्लास बनाई वो, तो नंबर 3 हो जाता है आपका स्केड्यूल क्लास बनाना। नंबर 4, नंबर 4 जो है, नंबर 4 या नंबर 3, एक मिनट, क्या है, नंबर 1 फॉर्मूला बनाओ, नंबर 2 बैच क्लास बनाओ, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 है स्केड्यूलेबल क्लास बनाओ। तो ये आती है स्टेप नंबर 4। वही तो बोलो 3 कैसे, ये आपकी स्टेप नंबर 4, 1 and 2, and this is 3, स्टेप नंबर 3, एंड दिस इज स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 क्या है, आप क्लास को शेड्यूल करो। तो वो क्या करना, उसके नेविगेशन यहाँ लिखे हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, एंड दिस विल बी स्टेप नंबर 5, ट्रैक करना। ट्रैकिंग करने का सेम ही है जो उसके पहले ही बताया हुआ है मैंने आपको। तो चलिए, अब यही स्टेप जो यहाँ लिखे ना, दैट इज ऑल्सो आई एम रिपीटिंग, यही चीज मैं आपको वहां से बता रहा हूँ, कुछ नहीं। तो यहाँ अगर जो भी बता रहा हूँ तो डोंट थिंक कि अरे ये मैं कैसा करूंगा बाद में, कुछ नहीं, वो लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, पूरा लिखा है। ठीक है, अब मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट डायरेक्ट जा रहा हूँ। तो लेट्स गो टू सेटअप एंड देन बिल्ड और डेवलप में जाके अपेक्स क्लास पे जाओ। अपेक्स क्लास पे जाने के बाद में ना आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में एक बटन मिलेगा, स्केड्यूल अपेक्स, ये देखो, डेवलपर कंसोल न्यू, सबके बाद में रन ऑल टेस्ट। रन ऑल टेस्ट में हम आने वाले जब हम टेस्टिंग लिखेंगे, टेस्ट क्लासेस। अभी फिलहाल आपको यहाँ पे दिख रहा है स्केड्यूल अपेक्स, ये बटन। ठीक है, क्लिक करो उसको। अब यहाँ पे आप जॉब नेम दो। जॉब नेम आपको देना पड़ेगा, आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने डिलीट क्लोज पोजीशन दिया, मैंने दिया, तो आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अब आपको सिलेक्ट करनी है वो क्लास जो आपको शेड्यूल करवानी है। तो बाय द वे मुझे कौन सी क्लास को शेड्यूल करवाना है, मुझे करवाना है शेड्यूल डिलीट क्लोज इस क्लास को। तो जब आप ये लुकअप पे जाओगे ना, जब आप ये लुकअप पे जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही क्लासेस के नाम नजर आएंगे जो कि शेड्यूल क्लास है, या फिर जो इंप्लीमेंट करती है, अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो वो जो इंप्लीमेंट करती है सिस्टम डॉट शेड्यूलेबल को। ठीक है, तो फिलहाल हमने एक ही बनाई है, तो ऑब्वियसली हमको एक ही नाम आने वाला है, देख लो आप। तो एज सुन एज मैं जाता हूँ तो हमारे पास में एक ही शेड्यूलेबल अपेक्स है, डिलीट क्लोज्ड पोजीशन शेड्यूलेबल जॉब, राइट, सिलेक्ट कर। अब इसको कब कब आप करना चाहते हो, तो अब ये पूरा, अब नाउ दिस इज सिमिलर, दिस काइंड ऑफ, ये जो इंटरफेस अभी आपको नजर आ रहा है, ये काइंड ऑफ सिमिलर इंटरफेस है जो हमने थोड़ी देर पहले रिपोर्ट्स के केस में देखा था। जब हमने कोई एक रिपोर्ट, एग्जांपल दिस वाज द रिपोर्ट, एंड इफ आई वांटेड टू शेड्यूल दिस रिपोर्ट, तो इसका जो द काइंड ऑफ यूजर इंटरफेस व्हाट यू आर सीइंग ओवर हियर, वीकली अगर जाते हो एंड यू नाउ सी इट, आप इन दोनों को कंपेयर करो, देखो, अ काइंड ऑफ सिमिलर इंटरफेस इज देयर, राइट। Even it has been written exact start time will depends on the jobs in the Apex queue whatever, तो same interface है ये। तो I wanted this to be run on probably every Saturday, on Sunday, let make it Sunday, है ना, संडे को इसको रन करनी है हमको, एवरी संडे आई वांटेड इट टू रन। एंड व्हेन फ्रॉम वेयर टू दिस, तो ये आप चाहे तो डेट ले सकते हो, ठीक है, एक मंथ की गैप से बता रहा है ये, 5th ऑफ मार्च से स्टार्ट करके 5th ऑफ अप्रैल पे। प्रिफर्ड स्टार्ट टाइम
तो आई वांटेड, जैसे कि 2 AM लिखा हुआ है, आई थिंक मेरे केस में यहाँ पे 2 AM लिखा हुआ है, एंड दैट्स द रीजन आई एम सेलेक्टिंग दिस 2 AM, है ना, अदरवाइज यू कुड सेलेक्ट इट व्हाट टाइम ऑफ स्टार्ट आप यू वांटेड। लेकिन आप 2 AM देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली इट विल गोइंग टू स्टार्ट एट 2 AM। वही तो लिखा है कि आप भले 2 AM सिलेक्ट कर लो, बट एग्जैक्ट स्टार्ट टाइम विल डिपेंड कि जॉब कितने पड़े हैं। हो सकता है ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, डिले हो सकता है, आगे पीछे मतलब डिले हो सकता है, बिकॉज अगर अपेक्स क्यू फुल होगा और कुछ ये जो आपने ये जो जॉब आप क्रिएट कर रहे हो इज गोइंग टू बी गेट इनटू द फ्लेक्स क्यू, तो फ्लेक्स क्यू से अपेक्स क्यू में लाने में थोड़ा सा समय लग सकता है या कोई और जॉब की वजह से, तो अप्रोक्सीमेटली इट कुड स्टार्ट एट 2 AM, वरना 2 AM के बाद में थोड़ा सा मिली सेकंड माइल सेकंड का फर्क पड़ सकता है। दैट्स द रीजन, एक वार्निंग मैसेज है यहाँ पे और कुछ नहीं, एक इन्फॉर्मेशन मैसेज है और कुछ नहीं। तो ये वीकली भी हो सकता है, ये मंथली भी हो सकता है ना, आप जैसा चाहे वैसा इसको शेड्यूल कर सकते हैं। नाउ सेव इट, हो गया, दैट्स इट, बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो अब ये जो क्लास है ये संडे के दिन एग्जीक्यूट होगी, मतलब हमारे लिए मंडे, ट्यूसडे के दिन हम इसका रिजल्ट देखेंगे। ट्यूसडे के दिन आप लोग मुझे याद दिलाएंगे कि ट्यूसडे के दिन हम क्या देखने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि ये आज ये जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, ये जितने भी पोजीशन रिकॉर्ड्स हैं ये डिलीट हुए हैं या नहीं, ठीक है। तो ये मैं एज अ रिमाइंडर मैंने आपकी बैच में ये जो डाल दिया है, ये ट्यूसडे, वी नीड टू चेक दिस ऑन कमिंग ट्यूसडे, ठीक है। तो ट्यूसडे के दिन हमारी क्लास शेड्यूल होगी, मतलब हम हमारे हिसाब से ट्यूसडे रहेगा, बट इट विल बी एक्चुअली संडे मंडे। संडे के दिन मतलब वो हमारे यहाँ मंडे होगा, तो वहाँ का संडे हमारे यहाँ मंडे होगा, हाँ मंडे के दिन वी विल बी गोइंग टू चेक दिस। तो संडे के दिन ये क्लास रन होगी, लेकिन हमारे हिसाब से वो मंडे होगा, एक दिन आगे रहेंगे हम लोग, तो ठीक है। ये क्लास रन होगी उस दिन, कौन सी क्लास, ये वाली क्लास, ये वाली क्लास रन होगी उस दिन। जैसे ही ये क्लास रन होगी इट विल गोइंग टू कॉल दिस बैच मेथड, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बैच क्लास का इंस्टेंस किया और बैच क्लास को एग्जीक्यूट कर दिया। as soon as this class is going to be get executed on the coming Sunday at 2 AM, this batch class is going to be get executed. And as soon as this batch class is going to be get executed, it will going to delete all those position records whose milestone date has been crossed. So we will probably going to check it on the coming Monday or maybe on the Tuesday. And what I am expecting is these all 9 records, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, all these 9 records will be get vanished. They will be get deleted. And we will be left with 1, 2, 3, and then 4. 9 plus 4 is 13, exactly. So we will be having only 4 records left in the position object. And they will also gradually going to be get deleted as soon as their milestone date is being crossed. So on every Sunday at 2 AM, this class will be get executed. It will call batch class. Batch class will also be get executed. It will going to delete the position record those whose milestone date has been crossed. तो एक दिन ऐसा आएगा, पता है आपका, यहाँ पे अभी जैसे 13 अप्रैल, ऐसे ही 2021 है, 2022 में 3, तो एक दिन ऐसा आएगा जब पोजीशन ऑब्जेक्ट पूरा डिलीट हो जाएगा। संडे का दिन, कोई तो भी एक संडे ऐसा रहेगा जब पोजीशन रिकॉर्ड से सारे रिकॉर्ड डिलीट हो चुके होंगे आपके। ये तो ये जो आज मैंने तुमको सिखाया ना, बेसिकली दिस इज नॉट जस्ट एन एग्जांपल विद द पोजीशन, इसको बोलते हैं रिकॉर्ड फ्लशिंग, ठीक है। व्हाट वी हैव लर्न जस्ट राइट नाउ इज रिकॉर्ड फ्लशिंग। वी आर फ्लशिंग द रिकॉर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द टेबल, फ्रॉम एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड हाउ वी कैन डू दैट periodical flushing, how we can do that? First step, create a formula. Step 2, create a batch class. Batch class for what? Batch class to have that business logic of flushing. Start method, query fire karo, records ko collect karo, collect the record and transfer it to execute method, do the business logic over here, delete, hai na, and then finish doesn't call anything, we don't have any purpose, so I have not written. Step number 2. Step number 3, schedule run of that batch class. Decide the, make a schedule class, call this batch class, execute this batch class inside the your schedulable class, and then finally you need to take the help of Salesforce also. And then in the Salesforce you will be actually what you will be scheduling that particular batch class, you will be scheduling that particular job. हाँ, अब इसको ट्रैक करने का, जैसा मैंने बताया, तो ट्रैक करने के लिए यू ऑलवेज रिक्वायर टू गो विद द सेम स्टेप्स, गो द स्टेप, और ये मैं तो बहुत पहले से बता दिया आपको। गो टू व्हाट, गो टू दी जॉब्स, गो टू अपेक्स जॉब, ठीक है। तो एक स्केड्यूलेबल अपेक्स आज हमने बनाया है, देखो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यूड हुआ है, क्यूड
Okay, what is the meaning of any job whose status is queued? क्या मतलब होता है बताइए? Yes, come on, tell me. Flex queue. Exactly. This job has been transferred to the flex queue. Any job which is residing inside the flex queue whose status is queued. अच्छा, what happens when it is transferred from flex queue to apex queue? सर तब क्यू रहता है, पहले होल्डिंग रहता है फ्लेक्स क्यू में, Yes, फिर Chetan, you are right, I'm wrong. It's holding and then it is queued. After queue, it's क्या executing, and after executing, it's completed. है ना, ऐसा ही है ना? यस सर. हाँ, तो बराबर है. तो हाँ, यस, क्यू इट्स नॉट होल्डिंग, इट्स एक्चुअली इन द क्यू. तो वो इसका मतलब हमारा जॉब जो है वो अपेक्स क्यू में जा चुका है, बट इट इज नॉट स्टार्टेड, अभी तक एग्जीक्यूशन में नहीं आया हुआ है. तो एग्जीक्यूशन में आएगा तो अब एग्जीक्यूटिंग और या फिर एग्जीक्यूटिंग जो भी उसका स्टेटस है फाइनली कंप्लीटेड ऐसा. ठीक है. उसके बाद में कुछ और चीजें जैसे कि कौन सी क्लास है, पोजीशन स्केड्यूलेबल क्लास है, और क्लास का जॉब आईडी क्या है. ठीक है. तो दीज आर द थिंग्स इफ यू वांटेड सी द स्टेटस. अब हम क्या करेंगे कि जो जब ये हमारा रिकॉर्ड एग्जीक्यूट में आ जाएगा, यानी ट्यूसडे या मंडे जब भी हम चेक करेंगे, तो ये स्टेटस आपको कंप्लीटेड होके मिलेगा. और दूसरा जो रिफ्लेक्शन इसका मिलेगा, वो रिफ्लेक्शन ये रहेगा कि दीज रिकॉर्ड्स विल बी गोइंग टू गेट डिलीटेड. ये इसका रिफ्लेक्शन रहेगा. ठीक है. चलो, सो दिस कंप्लीट्स योर असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग. ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर asynchronous programming. Next, from the not tomorrow, but on the Monday, I'll be starting with the triggers. The most important topic of your development. Triggers.